you meet Anil Sharma today or Subhash Ghai today, do they talk about those days or? I think Subhash ji would never remember because उनको उस ज़माने में बहुत सारे लोग मिले और चले, but he is the person who gave मैं हूँ हीरो तेरा के लिए the award to Amal and Arman, and I also met Vivek Bhushan 20 years or 15 years down the line and he was no more a star. Okay, तो ज़िंदगी का जो चक्री है ना उसका जवाब नहीं है, और मेरे बच्चे मुझे गाड़ियाँ गिफ्ट कर रहे हैं एंड सक्सेसफुल शोज़ हो रहे हैं, तो क्या बोल सकते हो आप, ज़िंदगी का जो उतार चढ़ाव है इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। तो अलग फिल्म मेकर्स हैं जो तुम्हारे लाइफ में, फिल्म पर्सनालिटीज रादर, वन इज मनमोहन देसाई, द अदर आई थिंक इज सलीम खान। सो एंड टेल मी अबाउट मनमोहन देसाई फर्स्ट। So Anu was getting very close to becoming the music director of Mard. He was being launched there, one of the biggest turning points of our lives. And at that time I was assisting and working with him. And in one of the sittings I wrote a line, Sajan mera us paar hai, milne ko dil bekarar hai. And Manmohan ji got the fancy of that line and was recorded in Ganga Jamuna Saraswati as a song which was completed by Rajendra Kishan. उसमें उनको मुझसे बहुत स्नेह हो गया और उसी वक्त उन्होंने इतना बड़ा 100 ग्राम्स का, उन्होंने चांदी का लक्ष्मी का मुझे कॉइन दिया, एंड ही डिड नॉट एवर डू एनी सिटिंग विदाउट मी। तो अन्नू को जब भी सिटिंग होती थी तो बोले डब्बू को बुलाया, डब्बू को बुलाया, डब्बू को बुलाया, तो यूज्ड टू ऑलवेज कॉल मी, एंड द काइंड ऑफ लव आई गॉट फ्रॉम हिम एंड द काइंड ऑफ सच अ ह्यूज मैन, मतलब ज़िंदगी में कभी वो ज़िंदगी के पल कभी मुझे नहीं, सो मच टू से दैट मैं उनका असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया क्योंकि मुझे आई वांटेड टू बी क्लोज टू हिम। तो म्यूज़िक की छोड़ के कि मैं शूटिंग पे 20-25 दिन मनमोहन जी के साथ रहूँगा, आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी विद हिम, आई लव्ड हिम। आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड ही लव्ड मी द मोस्ट म्यूजिकली, एंड ही हैड दैट टाइम प्रिडिक्टेड कि मैं उनको बोलता था नहीं मुझे एक्टर बनना है, मैं अभी एक्टिंग करूँगा, मैं अभी आपके साथ डायरेक्शन सीखूंगा, तो उसने बोला बेटा देखना एक दिन तो अपने भाई की लाइन में और अपने पिता की लाइन में जाएंगे, तब उन्होंने मुझे बोला था, और 20 साल बाद फिर ऐसा ही हुआ। वेरी क्लोज टू मी, आई मिस हिम अ लॉट। इन दिस लास्ट डेज आई ऑल्सो हैड गॉन वंस टू मीट हिम and wanted to touch his feet, but I never got a chance. Ketan couldn't reach anywhere, no? Can't talk about it. Salim Saab is another person, and tell me about Salim Saab. See, I want to take this opportunity and thank Salim uncle for showing me the way which nobody could have done, only he could have done. He has put so many people on the right path that his experience was the biggest learning curve for me. Thankful to Sohail Khan to give me the opportunity in Maine Dil Tujhko Diya. Otherwise, Dabu Malik's family would be nowhere. And without his acceptance कि नहीं मैं एक रैंक न्यू कमर के साथ डब्बू मलिक के साथ संगीत करूँगा and he will do all the songs, it was one of the greatest I think thing any person can do. I'll be indebted all my life for the opportunity that he gave me, and because of that one opportunity I think we resurrected the Dabu Malik family, Amal, Arman, me, and for the next 7-8 years we survived because of the support of the Khan family. And till date I take this opportunity to thank Salman Khan, Salim uncle and Sohail for being the strongest backbone for us, and I don't think we can thank them enough ever. And Salim uncle is the person who showed me the way. When he heard my songs, he said, you have a musician in you and you will succeed. So full credit to him for showing me and giving me the guts to become a composer. Asha ji, then I come to your family. Asha Bhosle, another one chapter that you mentioned. Talk to me about that. So Asha ji was, I think my dad's very close friend, and she was somebody who really respected my father. Good times or bad times, she was always there for Dad. She supported him, and other golden-hearted woman. And I think my lot of favors she did for our family in those times when my father was seeing difficult times. And I think she was always there for him, for singing his songs for an album or for a movie. She always supported my dad. She was a great support. Look, people don't talk about Jyoti so much,
Tell me about Jyoti's role in your life and the way she's brought up her children. एक आपने कुछ सवाल किया था कि क्रिएटिव नहीं, somebody else was telling me कि क्रिएटिव इंसान तो हमेशा आइसोलेटेड होता है, क्रिएटिव इंसान स्लो भी होता है बिकॉज वो क्रिएटिव प्रोसेस में होता है. ही कैन नॉट बिकम अ हसलर और काइंड ऑफ अचीवर और a businessman trying to get doing sales talk. It's not that easy. So I feel कि हमारी फैमिली में अमल, अरमान और डब्बू, हम तीनों के लिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग वर्किंग पावर, somebody who could join two dots, कि ये ऐसे करेगा तो उसको ये फ़ायदा होगा, ये ऐसे करेगा तो उसको ये फ़ायदा, शायद मेरे लिए इतना नहीं बट अपने बच्चों के लिए. Because by the time she came into being the mother of 2 kids and she had seen the journey of her husband, she had made an analysis कि what has gone right and what has gone wrong, and she compiled her entire energies and worked towards placing the kids in the right way, whether it is going out and getting to meet the right people, the right composer, the right ad people, and कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, the right advices, in spite of not being part of the industry. And I think full credit for my family and our kids for being the strong hold in the family. And she's like a teacher, so she has got a very mathematical and analytical मतलब foot ruler वाला rule है. So her emotions are focused only for the care of health of the children, but work oriented है बहुत. And she feels any time wasted is wastage of life. So she always has a process. And she brought about the corporate change in the family, and she's a fighter. And आप पूरी इंडस्ट्री जानती है कि when it comes to Amal Arman, whether it's their agreements or contracts and the deals and all that, she will see to it that they get the best of deals. And I think कि ये क्रेडिट हमको देना चाहिए कि आज जो भी हम हैं उसकी डेडिकेशन, उसकी हार्डवर्क और उसकी मोहब्बत की वजह से. अमाल और अरमान दो अलग बच्चे, एकदम अलग बच्चे हैं. मैंने अमाल को सबसे पहले मिली थी जब फर्स्ट फिल्म के समय, जब वो म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहता था. तो जब अमाल ने कब तुमको बोला कि वो म्यूज़िक डायरेक्टर इसी लाइन में आना चाहता है, और कब तुमको लगा कि इसको आना चाहिए, और यू हैप्पी अबाउट इट, और यू आर थिंकिंग कि मेरे जैसा हाल नहीं हो उसका? मैंने मेरे पापा को प्रॉमिस कर दिया था. बाय द टाइम माय फादर वाज द वन हु स्टॉप्ड ऑल ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन नेवर टू डू म्यूज़िक, कि सब लोग पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरियां करो. ये हमारा फाउंडेशन था कि तुम लोग कभी म्यूज़िक पे नहीं जाओगे. और वो जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल में थे और उन्होंने, मेरे बच्चों ने अपने ग्रैंड फादर के साथ 10 साल गुजारे थे, तो मेरे डैडी ने मुझे करीब बुला के बोला, याद रखना कि ये दोनों बच्चे मेरा लेगेसी आगे लेके जाएंगे, ये संगीत में बहुत बहुत पावरफुल है, और तू प्रॉमिस करके जो गलती मैंने की, ये अपने आप में एक कहानी है, तू मत करना, और इन दोनों को म्यूज़िक में ही पढ़ाना लिखाना और पूरी जर्नी, और ये मेरी जो अधूरी कहानी है उसको पूरा करेंगे मेरे ग्रैंडसन्स अमल एंड अरमान. और वैसा ही हुआ. तुम कैसे देखते, बिकॉज अमल it was a meteoric rise, when his career started, and suddenly this whole things went, turmoil came into his life, and he's a hypersensitive child. How did you deal with his trauma, his breakdowns? और तुम और ज्योति कैसे, बिकॉज तुम तो काफ़ी प्रैक्टिकल हमको लगते हैं, इमोशनल के साथ प्रैक्टिकल भी हो, ज्योति और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल है. पर जब देखा ज्योति ने कि अमाल ने जो बोला अभी, कहा अभी, हाउ डिड यू ऑल डील विथ इट फर्स्ट? आई थिंक द फर्स्ट रिएक्शन वॉज शॉक कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि भैया यू आर जस्ट लीविंग, यू आर सेइंग दैट आई ब्रोकन अवे फ्रॉम द फैमिली. बट आई थिंक देयर वर टू मेनी फैक्टर्स प्लेइंग ऑन हिज हेड, इन हिज माइंड, एंड ही ऑल्सो कुड नॉट हैव एन आंसर, एंड ही could not tell us directly, and he chose the path of going public and saying कि ऐसा है. और उस दौरान के बाद ही मुझे पता चलने लगा कि ऐसी कौन सी गलतियाँ माँ बाप से हुई, ऐसी कौन सी चीज़ हमारे रिश्तों के अंदर कमी रहेगी जो हमने फुलफ़िल नहीं की, और मैं उसको एक्सेप्ट करा. मुझे एहसास हुआ कि हमने क्या किया कि हम उसको ऐसे ट्रीट करने लगे कि वो फादर फिगर है और वही सब हैंडल करेगा. करेक्ट. हम भूल गए कि अगर एक तरफ अरमान को हम सब बिल्ड कर रहे थे, तो अमल को भी उतने ही प्यार, उतना ही क्लोजनेस, उतने ही हमको लगा कि वो तो अपने आप को हैंडल कर लेगा. लेकिन वो एक्चुअली
ऐसा बंदा था जिसको कुकून चाहिए था और जिसको केयर चाहिए था, जो शायद हम लोग ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट वेंट रॉन्ग। एंड मैंने उसको 15 दिन 20 दिन के अंदर बैठ के उस चीज़ को समझा, उस चीज़ को एनालाइज किया, और हम दोनों ने एक दूसरे की कन्वर्सेशंस में, मैं 15 दिन तक उसके साथ जुड़ के रहा। जो सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट ये आई उसकी लाइफ में, जब उसको मैंने ये बोला कि मैं भी फादर बनने के इस रिश्ते को सीख रहा था। आई वॉज ऑल्सो नॉट मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड कि कि आई नो द स्टोरी हाउ टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन, या मैंने कोई थीसिस नहीं की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ उसको घर गई कि जिस तरह तुम बच्चे हो, मैं भी पेरेंट के रूम में एक बच्चा था, और मैंने नहीं सब कुछ सीखा, और अपनी गलती को मैंने एक्सेप्ट किया, और उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि शायद हमने बहुत सारे लेवल्स पे उसको हर्ट किया, बहुत सारी बातों से उसको हर्ट किया जो हमको नॉर्मल लग रही थी, लेकिन वो हसास था, वो सेंटिमेंटल था, उसको उसने अपने घर में माइंड के एनवलप्स के अंदर बढ़ाता चला गया। और जब पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसी गलती हो सकती है, तभी एक चेंजिंग पॉइंट आता है। अगर आप उसको भी अगर डिफाइंट में बोलते नहीं हम तो गलत हो ही नहीं सकते, नहीं, मैंने इस चीज़ को माना कि हमारे से गलती हुई है, मैंने इस चीज़ को माना कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें अपने बड़े बच्चे के ऊपर जिम्मेदारियाँ डाल दी, और सिर्फ सच क्या है, झूठ क्या है, करना क्या है, नहीं करना क्या है, पैसे बचाने, ये करना है, वो सिवाय उसके डिस्कशन, उसकी जो इमोशनल साइड थी तो आप भूल ही गए। वो भी तो नर्चर होना पड़ता है ना। तो आई थिंक कहीं हमको भी इस चीज़ का एहसास हुआ, और जब उसको ये एहसास हुआ कि मेरे मॉम एंड डैड ने एक्सेप्ट किया है, एंड दे आर फीलिंग कि दे हैव मेड द मिस्टेक एंड दे हैव दिस लर्निंग कर्व, हम और भी ज़्यादा बॉन्ड हुए, और भी ज़्यादा चीज़ें निकल के आई, एंड आई थिंक वी केम क्लोजर आफ्टर ऑल दिस थिंग। बट इंडस्ट्री हमारी व्हेन अभी बीच में उसने एक इंटरव्यू में काफ़ी सारे लोगों के नाम ले लिए, बोल दिया, पर हमारी इंडस्ट्री तुम जानते हो इतने सालों से, यू नो हाउ इंडस्ट्री फंक्शन, इंडस्ट्री रूथलेस है, इंडस्ट्री ज़्यादा ही टची है। सो ये जब चीज़ें ना प्रोफेशनल लाइफ में हर्ट, आदमी इमोशनल है बोल देता है, पर प्रोफेशनली यू नो हाउ थिंग्स वर्क इन इंडस्ट्री, डज इट वरी? 100%। ये देखिए, मैं अमल को 10 बार कह चुका, मैंने बोला कि इट डजेंट मैटर टू पीपल, इट इज़ अ बिजनेस, इट इज़ अ कमर्शियल साइकिल विच इज़ हैपनिंग। अगर तुम रफल करोगे फेदर्स और लोगों को डायरेक्टली एक्यूज़ करोगे, लोगों के बारे में गलत चीज़ें बोलोगे, एंड ओपन हो जाओगे एंड ऑल दैट, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एवरीबडी नोटिस इज दैट, एंड पीपल वांट टू बी अवे फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, पीपल वांट टू बी अवे फ्रॉम एनीबडी टारगेटिंग देम और टेलिंग द ट्रूथ। कोई सच को इतने लेवल पे सुनना नहीं चाहता। यू हैव टू बी केयरफुल हाउ यू स्पीक, because in the end what work is professionalism, your luck, your destiny, and overall आज आप कितने भी बदतमीज़ हो, कितने भी बड़बोले हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर किस्मत आपके साथ है तो इट कीप्स ऑन, एवरीबडी सब कुछ माफ़ हो जाता है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके इंडस्ट्री बैठी होती है या दुनिया बैठी होती है, एंड बोलते देखा तूने ये किया था, ये उसका रिजल्ट है, देखा तूने ये किया था ना, उसका रिजल्ट है। तो फिर वो आप टारगेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप अपॉर्चुनिटी देते हो तब वो आप टारगेट हो जाते हो, बिकॉज बुरे वक्त का सामना करने के लिए आपके किए हुए सही रिश्ते या आपके बनाए हुए सही ब्रिजेस ही आपके काम आते हैं। यू नो, इफ़ यू आर टू सस्टेन, क्योंकि चलती किस्मत है, चलती तकदीर है, नो डाउट, बट क्या होता है कि कहीं, जैसे आज मेरी सबसे बड़ी इक्विटी है, आप अगर मेरे बारे में आप सलमान भाई से बात करो या शाहरुख खान से बात करो, मैं नाम ले रहा हूँ, या अमिताभ बच्चन जी के घर में या अभिषेक बच्चन से आप कोई बात करो, या जितने भी बड़े दिग्गज लोग हैं, तो उनको बोले डब्बू के बेटे हैं, डब्बू के बारे में जो मेरे मन में मेरी इक्विटी है ना, क्योंकि मैंने अपने, शायद डेस्टिनी में मेरी इतना कोई सक्सेस नहीं थी, लेकिन मेरे रिश्ते बहुत कमाल के रहे थे, बिकॉज मैंने कभी उस एरिया में गया ही नहीं, मुझे किसी को टारगेट करना नहीं था, इम्प्लीकेट करना नहीं था, और क्राई बेबी बनना ही नहीं था अपनी लाइफ में, मुझे करना ही नहीं था कुछ ऐसा। एंड अच्छा बुरा सबके साथ आता है वक्त, बड़े से बड़े के पास आया, छोटे से छोटे के पास आता है, सबके पास चीज़ें आती हैं अच्छी बुरी, ये सर्कल ऑफ लाइफ है, नहीं बच सकते आप इससे। तुमने बाजीगर का बात किया, टेल मी अबाउट बाजीगर, दैट एक्सपीरियंस विद ऑल यू वांट टू टॉक अबाउट। बाजीगर तो मतलब 1993, अब्बास मस्तान, Anu was struggling. He was not at all anywhere in the reckoning. Story was over, and he had no films. Everything was sold. The second wave of the tragedy had struck his life, and he was considered to be unlucky. और ad और jingle और छोटी छोटी पिक्चरें
he was doing, and whatever crumbs he was getting, he was working. And as fate would have it, हम लोग वीनस में थे, हम लोग गाना रिकॉर्ड कर रहे थे किसी ऐड का, और अब्बास मस्तान एंड रतन जीन had some altercation with in those times top most music director, and they called up कि अन्नू को बुलाओ ज़रा बैठे हैं. अब what are the chances of Annu becoming a music director, me becoming an actor in the same film? And it was so sweet. अब्बास मस्तान said, अरे तुमने वो काम किया था उसमें महाभारत में, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे याद है, एंड वो मेरा एक छोटा सा रोल है उसमें, एक गाना भी तुमको दूंगा, तुम करो. शिल्पा शेट्टी का लवर का रोल है. तो मैं तो उधर बोंगो बजा रहा था विद अन्नू, एंड आई सेड व्हाट इन लोग. और नेक्स्ट डे हम लोगों का फोटो शूट, मतलब एक ही दिन में अन्नू वाज साइंड एज अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड ही वाज इनटू द स्टूडियो. नेक्स्ट डे आई वाज इन द फोटो शूट, माय फोटो शूट है बिकॉज वो कैमरा की कुछ पिक्चर्स, आई एम प्लेइंग अ फोटोग्राफर इन दैट, तो मेरा फोटो शूट चल रहा था. आई सेड वाओ, देयर आई मेट शाहरुख, देन आई वेंट टू द बंगलो वेयर द शूटिंग वाज हैपन, मेट शिल्पा शेट्टी. तो इट वाज क्रेजी. मतलब कि I don't know why they took the decision to cast me also as an actor. And 1993 में तिरंगा बाजीगर दोनों ब्लॉकबस्टर. तुम्हें हम लोग अन्नू की बात करते थे, अब कैसा है? दूरियां कम हुई कि अच्छी हैं? हमारे में कोई दूरियां नहीं है. It is long. I think it is the love between me and Annu is unprecedented as brothers. There's never. मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ प्रोफेशनल काम होता है, every man has to follow his own destiny in his own path. ना कोई किसी की तकदीर बना सकता है, ना कोई किसी की तकदीर बिगाड़ सकता है. ये सब पॉलिसी है, और अच्छे बुरे सिचुएशन सबके साथ आते हैं. किसी को डायरेक्टली इम्प्लीकेट करना और बोलना कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, उनकी वजह से ऐसा हुआ, आई थिंक इज़ कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. आई डोंट बिलीव इन इट. पर्सनल रिश्ते अलग होते हैं, प्रोफेशनल रिश्ते अलग होते हैं, और प्रोफेशनल में हर आदमी कॉम्पिटिटिव है, हर आदमी अपना काम प्रूव करना चाहता है. अगर भाई हो या फर्स्ट कज़न हो या सेकंड कज़न हो, कोई आके आपको उंगली लेके बना नहीं देता है. ना ऋषि कपूर ने राजीव कपूर को बनाया, ना रणधीर कपूर ने किसी और को बनाया, या कोई फादर अपने बेटे को बना सकता है. ऐसा कुछ होता नहीं है. प्रूफ है, हमारे सामने है. करोड़ों रुपए भी लगा दो तो भी आप किसी की तकदीर लिख नहीं सकते. तो एट द सेम टाइम यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय ऑल्सो. बट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, कॉम्पिटिटिव चीज़ों के अंदर लोग टारगेट हो जाते हैं, एंड एक्सीडेंटली यू आर part of the wrath. That is a journey. But I would never in my life directly implicate my brother for anything, and I think he's a fantastic creator. He has set a legacy of the family and he's done some tremendous work. I respect him for that, and I love him as a brother as much he loves me. अरमान, सबकी बातें कर ली, अरमान की बातें करो. अरमान as a child, Arman as a singer, Arman as a brother, how do you look at that? I think Arman has actually fulfilled our singing dream, not only nationally but internationally also. He's the person who's performed with Ed Sheeran. He's performed 2-3 concerts with him, and he's the chosen one. He does English songs, he does Hindi songs. और वो एक बहुत सिंपल मासूम बच्चा है, और उसको सिवाय अपने कला के प्रेम के, सिवाय अपने काम के, वो कभी किसी उसको समझ नहीं आता है. ना उसको लोगों की थिंकिंग समझ आती है. उसको सिर्फ एक ही चीज़ समझ आती है कि ये पर्चा है, ये मुझे गाना गाना है, मैं रियाज करना है, वीडियो बनाने हैं, मार्केटिंग करना है. उसको हाउ इंडस्ट्री ऑपरेट्स, हाउ साइकोलॉजी ऑफ पीपल ऑपरेट्स, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. ही इज़ नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट. अमाल को भी संभाल लेता है. हाँ, 100%. कमाल का बॉन्ड है. आज अरमान देखिए ना, आज एक है ना टेस्टिमनी, पिछले 10 सालों में एक पिता का रोल निभाया है अमल ने. अपने भाई के लिए 70-80 सुपरहिट गाने बनाए, उसको इतना बड़ा स्टार बनाया. मुझे नहीं लगता इतिहास में किसी एल्डर ब्रदर ने या किसी भाई ने ऐसा किया होगा. अमल इज़ डन अ ट्रेमेंडस जॉब, एंड ये समझना इंडस्ट्री को भी ज़रूरी है, समझना माँ बाप को भी ज़रूरी है, और उसके आउटबर्स्ट को भी समझने की ज़रूरत. जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ बाप माफ़ करते हैं, वैसे ही हमारी इंडस्ट्री के बड़ों को और हमारे जो जान पहचान के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको भी अमल को किसी हद तक उसकी इन आउटबर्स्ट के लिए उसे माफ़ करना, बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ द फैमिली, माफ़ करना चाहिए. मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं संभालने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन आई डो नॉट वांट टू क्रिटिसाइज हिम, आई डो नॉट वांट टू tell him you're wrong, but I would rather just guide him what is the next right thing to do, and the next right thing to do is to do great work. जाते जाते डब्बू, what next for Dabbu Malik? I've already started my journey.
सो MWM मेरी एक छोटी सी म्यूज़िक लेबल है. मेरी इस बुक के अंदर लास्ट 15 चैप्टर जो हैं वो उसी के बारे में है कि कैसे मैं यंग टैलेंट्स को अपूर्व निषाद, अभय जोधपुरकर और सुनिधि चौहान के साथ मैंने किया है, अरमान, अमल एंड चंदन मंडल, प्रदीप पांडे, ऐसे बहुत सारे ऐसे कलाकार मुझसे जुड़ रहे हैं, प्रोग्रामर्स, अरेंजर्स जुड़ रहे हैं, लिरिक्स राइटर जुड़ रहे हैं, जिनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं नर्चर करने के लिए. एंड आई थिंक आई एम रियली एन्जॉइंग. सो ऑन स्टेज व्हेन आई गो आई ब्रिंग द रेट्रो म्यूजिक ऑफ राजेश खन्ना, Kishore Kumar and Pancham Da. I'm a great fan of these three stalwarts. That's how I perform. At the same time, I bring my originals, and at the same time, I'm nurturing all kinds of talents from different walks of life to come join this legacy and fulfill your dreams. You mentioned independent music कहाँ जा रहा है? Is there enough in today's time? How do you look? 100%. We are now free from any kind of traps. Now you don't have to be a Bollywood singer. You don't have to be a film composer to make it big. Today the opportunities are galore. You can do what you want. And आज देखो ना, first top 50 के अंदर तो 20 independent गाने हैं. फिल्म गाने तो उसके बाद आते हैं. It's tremendous. वो ज़माना चला गया. अभी independent music is at par with Bollywood in this center. Bollywood is of course the mainstay because marketing publicity बढ़ी है. लेकिन independent music सर चढ़ के बोल रहा है. Royalty, now that we talked about independent music, royalty, you think the royalty finally मिलने लगी है? What is the yeah, big change. बहुत ज़्यादा चेंज आया. सबको अपने हक का, अपने PRS, IPRS, ASCAP, international bodies are coming and all the artists are getting their due. It's a fantastic thing and that's happening. Thank you for your time. Thank you.